Hello everyone, I am Jyoti Sengar, your English educator. Come again with the second part of the chapter, The Red Trap. And we'll start from this paragraph and let's study with me. Okay. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch while hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. These he held up before his eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed from the back into the pouch. अब जो यहाँ पे स्ट्रेंजर है उसे इस चीज़ का बिलीव नहीं होता कि ऑनर ऑफ द कॉटेज द क्रॉफ्टर moved towards the window and there was a pouch, leather pouch was hung there. In that leather pouch was 30 kroner. He took out from the kroner and from the pouch and showed to the stranger. A stranger, this thing is unbelievable for a stranger कि ऑनर उसे खुद से अपने पैसे दिखा रहा है. The next day both men got up in good season. In good season means होता है early in the morning. The crofter was hurrying milk to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in the bed when he head of the house had gotten up. तो इट मीन्स नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों सुबह जल्दी जाग जाते हैं क्योंकि जो क्रॉफ्टर को तो जल्दी अपनी काऊ का मिल्क सेल करने जाना था, और जो हमारे जो स्ट्रेंजर हैं, पैडलर हैं, वे शायद सोचते हैं कि अगर ऑनर जाग गया है तो उसका सोना अच्छा नहीं रहेगा. They left the cottage same time and the crofter locked the door and put the key in his pocket. दोनों एक ही टाइम पे उस कॉटेज को छोड़ते हैं और हमारे जो क्रॉफ्टर है वो की को अपनी पॉकेट में रख लेते हैं. द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे. और इसके बाद एक दूसरे को बाय कहते हुए अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. But half an hour later, Red Trap Paddler stood again before the door. He did not try to get in, however. He only went up to the window and smashed a pane stuck in his hand and got hold the pouch and the 30 kroner. He took the money and thrust into his own pocket. Then he hung leather pouch very carefully back in his place and went away. So it means after 30 minutes the red trap come back again at the front of door, but he did not try to get in. He smashed the pane. Pane means the glass of the window and take out pouch and took 30 kroner and keep back the pouch and hang on the window. As he walked along, the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that the first dare not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. अब वो काफ़ी खुश है अपनी स्मार्टनेस पे और चाहता है कि इस तरह से हाईवे पे जाना आफ्टर थीवरी तो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. सो ही टेक द वे टूवर्ड्स द वुड यहाँ पर शो किया गया फॉरेस्ट के लिए. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स. इट इज़ फॉर अ बिग कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच इज़ हैड गोटन इन टू. अब यहाँ पर उसके लिए वो जो फॉरेस्ट था जिसमें उसने एंटर किया था एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजिंग पाथ बन चुका है क्योंकि वो चाह कर भी उससे बाहर नहीं आ पा रहा है. He tried to be sure to walk a definite direction, but the paths twisted back and forth. So strangely, he walked and walked without coming to the end of the wood, and finally, he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once, he recalled his thoughts about the world and the rat trap. अब वो जितना भी उस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है उतना ही वो उसमें फंसता जा रहा है. वो फॉरेस्ट में जितना भी बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ रहा है वो अपने आप को वापस उसी रास्ते पर पाता है.
तो अब उसे एक थॉट उसके माइंड में आता है कि शायद मैं भी एक रेड ट्रैप में फंस गया हूँ। ही हैड हिमसेल्फ टू बी फूल्ड बाय अ बीट हैड बीन कॉट, और खुद को फूल समझता हुआ कहता है कि मैं भी उस बेट, जो वो 30 करोड़ पाउच था, वो मेरे लिए एक बेट था और मैं उस बेट के चक्कर में वर्ल्ड के रेड ट्रैप में फंस गया हूँ, पकड़ा गया हूँ। द होल फॉरेस्ट विद द ट्रंक्स ब्रांचेस thickest fallen logs closed in upon him like an unimpenetrable prison from which he could never escape. अब वो फॉरेस्ट उसके लिए एक impenetrable means we can't never cross that the thing like a prison place बन चुका है। Next paragraph. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased our danger and increased also his gloom and despair. Late December, it means December के last days थे 23, 22 या 24. डार्कनेस विंटर डेज थे तो डार्कनेस जल्दी से नीचे मतलब जल्दी से शाम हो रही थी, अंधेरा आ रहा था, और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, डार्कनेस बढ़ रही थी, उसके लिए डेंजर और उसकी जो डिस्पेयर है, निराशा, वो भी बढ़ती जा रही थी। फाइनली ही सो नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड ट्राई टू डेथ थिंकिंग हिज लास्ट मोमेंट कम। अब वो क्या करता है, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और वो वहीं पर ज़मीन पर बैठ जाता है और लगता है इसका डेथ मोमेंट बिल्कुल नियर है। जस्ट एज ही हेल्ड हिज हेड ऑन हिज ग्राउंड ही हर्ड द साउंड अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। और जैसे अपने हेड को नीचे ज़मीन पे ग्राउंड पे रखता है, उसे एक रेगुलर थम्पिंग की आवाज़ आती है। देयर वॉज नो डाउट एट what that was. He raised himself. Those are the hammer struck from an iron mill, and he thought there must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. और उसके बाद वो उसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो इट इज़ द साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक, हैमर के स्ट्रोक्स हैं जो कि आयरन मिल में ऐसे साउंड आते हैं। तो वो सजेस्ट कर रहा है मन में कि शायद यहाँ आसपास आयरन मिल है जहाँ से ये साउंड आ रहा है। अब वो क्या करता है, अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करता हुआ उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। नाउ मूव्स टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. So our next paragraph is the Ramzo Iron Works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter rolling mills forged in. अब यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं वो कहती हैं कि अब फ़िलहाल प्रेजेंट में वो रैमज़ो आयरन मिल बंद हो चुका है, लेकिन उस टाइम, जिस टाइम की मैं बात आपको बता रही हूँ, उस टाइम पे यहाँ पे एक बड़ी मशीन स्मेल्टर की होती थी जो आयरन को मेल्ट करती थी, रोल करती थी, और उसमें मिल में फोर्ज थी, मतलब एक फर्नेस थी। एंड इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन ऑफ हैवी लोडेड बार्जेस एंड स्काउ द बोट नेम स्लिड डाउन द कैनल। यहाँ पर एक कैनल होती थी जिसका नेम था इनलैंड लेक, आगे बताया गया है। उसमें बार्ज और स्काउ नाम की जो बोट है वो समर में एक तरफ फ्लोट होके जो भी वहाँ पे रॉ मटेरियल था उसको लाती थी और ले जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal carrots. और विंटर्स में जो रोड था वो ब्लैक हो जाता था क्योंकि बहुत बड़ी कैरेट्स जो थे वो चारकोल को लेके जाती थी और उसकी जो डस्ट है वो शिफ्ट होकर पूरे रास्ते को ब्लैक कर देती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ. During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace fitting the pig iron which had been put in the fire to be ready for the anvil. Anvil कहा जाता है वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर आयरन के किसी भी पार्ट को बीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हैमर। अब इस मिल के अंदर का ये सीन डिस्क्राइब किया गया है जिसमें ब्लैक स्मिथ और उसका जो हेल्पर है दोनों बैठे हुए हैं और उन्होंने एक जो रोड उसमें फर्नेस में डाली हुई है उसका वेट करने की कब हीट मतलब कि ज़्यादा गर्म हो और उसे कभी एनुअल पे लाके बीट करें। एवरी नाउ देन दे गॉट अप टू द स्टिल डेवलप मास एंड द लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग द फ्यू मोमेंट्स and dripping the perspiration though it was custom. He wore nothing but a long shirt and pair of wooden shoes. अब वन बाय वन एक के बाद एक जाते हैं और उस आयरन रोड बार को मूव करते हैं। उसके बाद जब वे वापस आते हैं तो एकदम ड्रिपिंग स्वेटिंग उनकी होती है, पानी से टपकते हुए पसीने उन्हें आते हैं।
मोस्टली वहाँ उनका जो अटायर था वो क्या था, लॉन्ग शर्ट और वुडन शूज़. द वुडन शूज़ प्रोटेक्ट देयर स्किन फ्रॉम द हीट. नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड टू बी हर्ड द फोर्ज. अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में फोर साउंड्स के बारे में बताया गया है कि उस मिल में, रैमजो एंड मिल्क में किस टाइप के साउंड थे. फर्स्ट था वहाँ पे एक बैलो था. बैलो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ से उस फर्नेस में हवा हवा के थ्रू उसके चारकोल को ज़्यादा भड़काया जाता है, क्योंकि क्रैकल का साउंड आता है. उसके बाद सेकंड जो उसमें साउंड था वो फर्नेस का था. फर्नेस के साउंड में उसमें जो क्लैटर की आवाज़ आती है चारकोल की. थर्ड साउंड था वाटरफॉल का जो आउटसाइड था. एंड द फोर्थ साउंड वाज रेन साउंड. दैट वाज द रेन हिट अगेंस्ट द tiles roof. So I sum up this video this, and I want to recall or the summary again. And in the starting of the chapter, uh, a wanderer, a vagabonds move here and there with rat trap sailing, and sometime he stole things also. And when he was walked along with the road, he saw a cottage. The owner of the cottage welcomed him very warmly, but at the end he take some money from his house and moved to forest, where he forgotten path and moved to Ramzo and Mill. And in these paragraphs describe the condition and situation of Ramzo and Mills. We'll meet again in the third part. Okay, so bye bye. I'm your English educator. If you like this video, so like it, subscribe it. Okay.